सो हाय एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इटकॉन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. नाउ इनका IPO लास्ट ईयर आया था एट द प्राइस ऑफ 51 रुपीज़ पर शेयर, और तब से अभी तक इन्होंने मोर देन 1400% का गेन्स दिया है उनके इन्वेस्टर्स को. सो आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव मित्तल एंड ही विल शेयर विद अस हिज जर्नी एंड हिज एबिलिटी जो उन्होंने प्रूव की है लास्ट 1 ईयर में. सबको जो फ़ायदा दिया है उसके बारे में ये हमें शेयर करेंगे. हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good. How about you, Sagar? Doing great sir. All right sir. So sir, in today's podcast we first want to know about you. Like sir, आपके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि how was your early like college days? What I think you studied electrical engineering and MBA both, right? So I come from a very humble background, and my father had been in the job. He had been in accounts department in this CDA, right? Oh. So he had been on the various different job postings to Jodhpur, to Dehradun, to Meerut, to Delhi, and my birthplace is Jodhpur. I had been there only at the age of around I think 3 years to Jodhpur, and then we came to Dehradun. Basic schooling had been from the UP board, and since we had been 4 brothers sisters, so we did not have much of the money, so we had education wise and everything was from the mediocre kind of a school. And but that was one of the good thing, because the focus and stress had been on the studies. Everyone wanted from the family, like my elder brother, he himself prepared for IIT Roorkee. He got selected out there. From there the aspiration came to sister. She did her medical from Meerut Medical College, and younger sister, she also did MA Finance plus MA Economics, English honors. And then the similar sort of aspiration came to me. I also prepared for engineering. It was not in my luck to do it from IIT or Roorkee, but I did it from MNREC Engineering College, KNIT Sultanpur. So that was the starting point. And during this time of ours, which was 94 to 98, during my engineering time, there was little stress on IT, because there was a Y2K problem which was coming up, and there was a lot of people wanted to go to US, because that was coming up as a boom, and there was a different story and different perspective, like everything will get closed once it clocks to year 2000. Yeah. And lot of jobs they came. I also got selected from the campus to JP Cement. I also got US offers, but I would say I was a home guy. I did not prefer to go outside, despite of having 3 offers from US. Wow. I instead so you yeah. had a like आपके पास एक जॉब ऑफर थी US की कंपनी से, और आपने like डिसाइड किया कि नहीं, मुझे US नहीं जाना है. Because I wanted to be there with my parents, because everyone else was outside. My elder brother shifted to US. Both the sisters, they got married. I am the youngest one, so I wanted to be with my parents only. Okay, so you wanted to be with your parents. That's why you decided कि आप अपने घर पे ही रहोगे, होम ग्राउंड में ही रहोगे. Yes. This is a very big thing, because आप आज के टाइम पे भी नोटिस करोगे, many people prefer कि हम बाहर जाएंगे, बाहर जॉब करेंगे, सैलरीज अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, और opportunities are better. There are 2 things why the people they prefer to go to US. One is the money, and second one is the quality of life. Right. Quality of life, when they say everything you have to do yourself only. So in India, if you have a lot of money, you have a lot of wealth for yourself, if you can create that part, and you can also help other people to creating the wealth, whatever the luxury you want to afford, you can do it in India, but becomes difficult to do it in US. And अपना देश तो अपना देश है. सही बात है. अपना देश तो अपना देश है. So that's amazing. So आपने कॉलेज कंप्लीट किया, you decided to work here. Then where did you start working? So before starting the work, I also did my MBA from Nasim Monji. Okay. Finance with international marketing. Okay. Oh, amazing. And that core of my electrical engineering was not there, but this MBA was a real boost in terms of giving me managerial qualities, in terms of doing business, in terms of the cash flow management, in terms of doing marketing, sales, and in terms of dealing with people and people management kind of things. Okay.
सर आजकल ना बहुत वीडियोस ऐसी आ रही है जो बोलती है कि एमबीए यूजलेस है, मतलब एमबीए करने के बाद लोगों को 20,000 की जॉब मिल रही है, 25,000 की जॉब मिल रही है, एंड यू नो दे आर नॉट अब एबल टू बेसिकली गेट अ जॉब इवन आफ्टर गेट डूइंग एन एमबीए। सो इस So पे कट MBA is a basically practical knowledge. I'll not say कि MBA के बाद useless चीज़ है. That is a practical. See, in the life there are 3 or 4 things which are important. One is your financial management, which is cash flow. If you're doing business or even if you're managing your home, your cash flow management is the important thing. If you're running a negative cash flow, it means you're doing you are actually not doing bleeding, good. not doing a good job. Second thing is the sales and marketing. The moment you start growing, you start negotiating with your parents. As a child, if you don't tell your mother that you are feeling hungry, then you will not get even food. So it is sales. So how you do the sales means you start crying. When you show you're crying, your mother understand that you want milk or you want food. Yes. Similarly, in the life, when you go negotiate with your wife, children, teachers, parents, and everyone else, you start negotiating. So the good negotiator you are, that is the best thing in the business to be done. These are 2 things, and third one is your sales and marketing skills is one part. Then people management. How good are you in terms of managing your team? Because during the course of the life, you will be getting a lot of people with the gray hair, whereas you are young and wise. They are veterans, and once you have that kind of a skill, and you can negotiate or you can manage those kind of people, their aspirations, they are making them to report to you, taking the big decisions on their behalf, which they are going to be adhering to. That is something which is a skill which is required, which is people management. So if you have got these 3 skills, you are going to be successful. That is the practical part of it. हाँ अमेजिंग सर, एमबीए क्लास से अच्छी मुझे ये आज का सेशन लग रहा है। एमबीए की ट्रेनिंग आप ही देने वाले हो आज लगता है। See, MBA is not useless. It's the practical understanding. Second thing is you have to relate your life with the practical life what you study there. So वहाँ पे अगर मार्केटिंग के 7 P's पढ़ते हैं तो 7 P's को लाइफ के अंदर आपको उतारना है, रिलेट करना है चीज़ों को. ओनली देन इट इज गोना बी बेनिफिशियल. अगर वो रटाफिकेशन करते हो कि पेपर में देना है, वो पीरियोडिक प्राइसिंग, पोजिशनिंग, हाउ यू डू इट एक्चुअली इन द प्रैक्टिकल लाइफ इज इंपॉर्टेंट. फिलिप कॉटलर ने तो केवल वहाँ पे वो पॉइंट्स दे दिए हैं. फिलिप कॉटलर की बुक से रीड करने के बाद में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसके MBA के बेनिफिट को नहीं देख पाएंगे. लाइक आई विल टेल यू वन मोर थिंग. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBA finance, I took the major finance, but I come from the engineering background, so my background was not commerce. Understanding the balance sheet, understanding the P&L was the most difficult part for us. I never used to, I used to get afraid of. और उस समय मेरा साथ एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि आई हैव अ एलिफेंट मेमोरी. मुझे वो पेज पे किस बुक के किस पेज पे क्या लिखा हुआ था मुझे वो याद रहता था. पेपर में पास होने के लिए आई डिड दैट. ओके, तो आप वो 3 इडियट्स के एकदम रट्टा मार पाते थे वैसे. और जब टीचर्स वहाँ पे बोलते थे हमारे को पढ़ाने वाले कि ये करना है, इसमें बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं उनसे ये कहता था यार समडे आई विल ओन ए कंपनी. वहाँ पे टैली होगा, वहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल्स होंगे, या ये सब चीज़ें बूम में आ रही थी, और मेरे पास वहाँ पे जो है फिनांस और अकाउंट की टीम होगी. ये काम उनका है, मेरा काम क्या है, फिनेंशियल डिसीजन लेने का. And that was I mean I did not know that I'll reach to that level, but that was aspiration I used to say. Wow. And sometimes what you say actually becomes the truth. Becomes the truth. अगर आज भी मुझसे कोई कहे कि बैलेंस शीट बना दो, I cannot make a balance sheet. I can read it. I can read it. I can interpret it. I can tell whether this business is running good or not. I can read the ratios. I can talk about it. I can talk about PE ratio. I can talk about EPS. I can talk about EBITDA. I can talk about valuation and all that stuff. And I am very good into that part. But if you say कि बैलेंस शीट बनानी है, sorry, that's not my job. It's not your job. Correct. आज अगर उन टीचर्स को पता चल जाए आप लिस्टेड कंपनी के ओनर हो तो शायद थोड़ा टेंशन में भी आ जाए वो लोग. So I am the first person who went public in from my engineering college. That is the only first thing in 65 years of history. Wow, amazing sir. But some things are in destiny also. I believe a lot in destiny. Yeah, I have read about एस्ट्रोलॉजी और वास्तु न्यूमरोलॉजी. मैंने काफ़ी देखा है, आप इसके बारे में काफ़ी बात करते हो, जबकि आप हो एक फाइनेंस बैकग्राउंड से, यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. मोस्ट जो पढ़े लिखे लोग रहते हो जल्दी से बिलीव नहीं करते इस समय. सो हाउ डिड यू गेट इनटू ऑल दिस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? ओके, तो सागर इसका आंसर मैं पहले यहाँ से दूंगा. आपने कहा कि लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं. एग्रीड.
People believe it. 99.99% people believe it, but they are afraid of coming to the podium and talking in public about it. डर हर किसी को लगता है, वो चीज अलग है कि डर के आगे जीत है, बट डर किस जगह पे लगता है कि फेल होने का, एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद में, फैमिली में बच्चों को, वाइफ को, पेरेंट्स को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, कोई और समस्या आ जाए, उन सब चीज़ों से सबको डर लगता है. यू आर ए ह्यूमन बीइंग. आप एक फिनेंशियल पार्ट पे यू कैन डू वंडर्स बिकॉज इट मे बी बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी, it may be because of your luck factor, it may be the right opportunity at the right time, it may be because of the market circumstances, or you may got a godfather. Correct. Right. Correct. But at the end of the day, once you reach to that level, उस लेवल से नीचे देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती. सही बात. अब उस जगह पे जिस दिन ऐसी कोई समस्या आती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, whosoever you believe in, God, अल्लाह, ईश्वर, whatever, तो आप ये कहते हैं भगवान सिचुएशन से बाहर निकल बचा ले. सही बात है. अब क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, जब पता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नो अदर चॉइस, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ए ह्यूमन बीइंग, तो जब जाना ही उसके पास है, किसके पास? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनके पास. तो सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहे को होए. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, यदि आप उसी को बांध लेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. अब आपने कहा मैं लाइफ साइंसेज में क्यों बिलीव करता हूँ. Not only believe, I practice, and I am known as Mahaguru onto that particular perspective. On occult sciences, be it Vastu, be it Kala therapy, gem therapy, stone therapy, Rudraksh therapy, Yantra, Tantra, Mantra sciences, right? Astrology is one part of it. Even astrology, numerology. It's all about alignment of yourself with the external energies. Once that equilibrium is there between external world, which means these surroundings, and yourself, inner peace, you get at peace. जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो जाए कि सुख में मुझे सुखी नहीं होना है, आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई विल स्ट्राइव फॉर इट, आई हैव द पैशन, आई विल कीप कंटिन्यूइंग स्ट्राइविंग फॉर इट, ट्राई एंड ट्राई अगेन, सक्सेस विल एम्ब्रेस यू, जस्ट फोकस ओनली ऑन दिस. जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि 18 साल के बाद राहु के ग्रह चेंज होते हैं, 7 साल के बाद केतु के ग्रह भी चेंज होती हैं. अगर वो फिर वीनस का टाइम आता है केतु के बाद तो 20 साल के लिए आता है. तो जिंदगी के अंदर ये सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे. अगर लाइन स्ट्रेट है इट मीन्स दैट, इफ इट्स अप्स एंड डाउन साइनोसाइडल कर्व है इट मीन्स यू आर अलाइव, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए, माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, वेदर इट इज वास्तु, कलर थेरेपी, स्टोन थेरेपी, यंत्र, तंत्र, मंत्र, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी एक्सेट्रा, दे गिव यू आइडिया व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, सो यू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड. सम पीपल दे से कि दे विल फील, डर लगेगा कि आगे क्या होने वाला, अगर वो पता चल जाए. मैं कहता हूँ अगर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है तो अपने कर्मों को सुधार लो. वो चीज़ों का जो इम्पैक्ट, अगर गाड़ी 100 की स्पीड पे टकरानी थी वो 40 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे टकराएगी, एंड द डैमेज विल बी लेस. Certain things is not in your hand. Like you see the bloodbath market. I have seen lot of say market जो अपने आप को मार्केट का धुरंधर समझते हैं, जब ये अभी ब्लड बाथ है 2 महीने में, आई हैव सीन देम ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग. कोई कंट्रोल नहीं कर पाया कुछ. तो सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. होता क्या है, तो ये चीज़ों के लिए जो एस्ट्रो वाला पार्ट है अपने को लाइफ साइंसेज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन करने का एक तरीका है. वंस यू आर इनटू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट लाइफ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फिनेंशियल डोमेन में हूँ, ये मेरा कर्म है. बट मेरा दूसरा धर्म क्या है? धर्म यह है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है. द मोमेंट आई हैव दिस फीलिंग दैट आई विल नॉट डू एनी हार्म टू एनी वन, नीदर आई विल थिंक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, आई विल ओनली सी पॉजिटिव आउट ऑफ एवरीथिंग, देन आई मेड इट ए पॉइंट दैट आई एम नॉट गोना अर्न नेगेटिव क्वेश्चन टू माई लाइफ. एंड लाइफ का पर्पज क्या है कि आई डोंट वांट ए नेक्स्ट बात टू बी देयर. अगर वो नेक्स्ट बात नहीं होगा, बिकॉज इस पृथ्वी पे आने जाने का जो कार्यक्रम है, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बिलीव इट. वो ये कहते हैं कि जो कुछ है वो यही जन्म है, इसी जन्म में जो कुछ करना है कर लो, खा लो पी लो ऐश कर लो, अगला जन्म किसने देखा. बट जब अगले जन्म की सफरिंग्स आती हैं और जब नेक्स्ट बात आती है, सफरिंग्स आती हैं, देन ये समझ में आता है कि अब क्यों मुझे ये सफरिंग्स आ रही हैं जबकि इस जन्म में मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा. तो देयर इज सम रेजिडुअल बैलेंस व्हिच इज कमिंग आउट टू बी गेट नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस व्हिच इज देयर इन योर अकाउंट, which you have no other choice but to
pay for it. Settle it. And then till the time it is coming out to be zero, some balance, you have no other choice but to keep coming to the earth. And that's the our basic human theory, life theory. बट सर आपको ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि कुछ खराब हो जाता है या कुछ खराब हो गया है उसके बाद आते हैं, लाइक उनको इतना अभी डर लग रहा है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तब आते हैं, नॉट कि जैसे कोई लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं या जैसे आप लोग स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो उस पर वर्क कर रहे हो. 80% 70% मैंने देखा है कि जैसे ब्लड बाथ हो गया तो अभी काफ़ी लोग वास्तु में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे और ये सब साइंसेज में जाएंगे. तो इस पे आपका क्या? जब मैंने यही चीज़ बोली यहाँ पे कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई. ये प्लैनेट्स का मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी है विच इज़ नथिंग बट त्रिदेव. अगर आपने त्रिदेव को रख लिया तो आपके पास ज़िंदगी में सुख दुख. इवन रामचंद्र जी जब पृथ्वी पे आए थे तो पिता से 14 साल का वनवास हुआ, उन्हीं के पीछे उनकी डेथ भी हो गई और घर से दूर जाना पड़ा. तो ह्यूमन की लाइफ में जो भी आया है उसके ऊपर इन प्लैनेट्स का इम्पैक्ट रहना है. अपने कर्मों के अनुसार उनके रेजिडुअल संबैलेंस को आपको निपटाना है. किशन जी है, बचपन में माता से साया छूट गया, ही हैड नो अदर चॉइस बट टू गो टू द मथुरा से नंदग्राम के बाद फिर वापस मथुरा आए, माता पिता से फिर नाता छूट गया. तो ह्यूमन लाइफ में जो आया, गौतम बुद्ध आए जो भी उनके 9th इनकारनेशन है. तो ये तो एक लाइफ है जिसके अंदर हर प्लानट का आपके ऊपर असर आना है. अब अपने प्लानट के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए तो अपने को पॉजिटिव रख के चलना है. हम जो ये उपाय कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, ये चल रही है, उनके उपाय कर लो. दिस इज ओनली ए डेफरमेंट. अनलेस यू स्टार्ट बिलीविंग इन टू योर कर्मास, यू स्टार्ट हैविंग दैट फियर ऑफ द गॉड, यू स्टार्ट हैविंग दैट फियर कि जो मेरे कर्मास नेगेटिव हैं, जो मैं नेगेटिव कर्मास अर्जित कर रहा हूँ उसके लिए मुझे या तो इसी जन्म में या नेक्स्ट जन्म में पे करना है, तब तक आप अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते. ये एक पुड़िया है दवाई की जो एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब के उपाय करना या फिर वास्तु के खाली. अगर आप इसको एज ए बट कैसे समझने का कि क्या उपाय सही है सर? जैसे मतलब आपको एक गुरु चूज करना पड़ेगा या एक कोच मेंटर जो भी बोलो कि क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मार्केट में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो हाउ डू यू यू नो और वेयर डिड यू कम टू फाइंड अ करेक्ट कोच और मेंटर फॉर दिस नॉलेज? जिस दिन आपके अंदर एक फियर इनकलकेट हो जाता है कि मुझे किसी का बुरा करने से मेरा बुरा होगा, आज नहीं होगा कल होगा, उस दिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी आ जाती है. फिर दूसरी चीज़, ये डेस्टिनी है, डेस्टाइंड है कि किसको किस पाथ पे जाना है. नॉट एवरीवन विल गो टू द राइट पाथ, नॉट एवरीवन गो टू द रॉन्ग पाथ. उसके अंदर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हुए वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हुए देन थिंक फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव कि जो मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ दे आर माई ड्यूटीज़ बट माई कर्मा एंड माई धर्मा इज ensuring while performing these worldly things I do not do anything which is gonna hamper my path for moksha or nirvana. The moment you have that kind of a feeling, your life is sorted out. आज अगर मैं कहूँ कि शेयर प्राइस हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. मार्केट है करेक्ट. आज किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसने आज सपोज फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा. सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस टूटेगा. यदि किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो 10,000 शेयर होल्ड कर रहा है और सप्लाई बायर साइड पे 10,000 बायर्स नहीं खड़े हुए हैं, उसने ऊपर सर्किट से लोअर सर्किट इधर बेचना शुरू किया, प्राइस नीचे आ जाएगा यदि कोई खरीदने वाला नहीं है. तो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. तो ये ऊपर नीचे का जो गेम है, यदि आप हार्ट बीट बढ़ाओगे कि भैया आज प्राइस डाउन आ गया, प्राइस अप हो गया और एक्साइटमेंट लोगे, यू नॉट गोना लिव द लाइफ. बिकॉज हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से और लाइफ साइंसेज के हिसाब से 120 साल की ह्यूमन लाइफ है. जितनी जल्दी आपने सांसें धड़कन बढ़ा के ऊपर नीचे कर ली या कम कर ली, उतनी लंबी लाइफ जी लेंगे. अदरवाइज 120 साल से पहले आप जाने. मैंने भी ये काफ़ी सुना था बचपन में कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सांस है. सो जितना आप स्लो सांस लोगे, धीरे सांस लोगे, उतना ज़्यादा जियोगे. और एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, और लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा. लोग जिम जाते हैं, लोग रनिंग करते हैं, लोग काफ़ी वाली डिफ़िकल्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं. हाँ. इन कंपैरिजन टू उसके अलावा जो दूसरे लोग योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिनको अपने प्राणवायु के ऊपर कंट्रोल आ जाता है. आप देखिए दोनों में से लाइफ किसकी लॉन्ग होती है?
पीस में कौन ज़्यादा होता है? पीस नहीं, में वो 100% ज़्यादा होगा, पीस बॉडी में वो बिल्डर्स ज़्यादा तो होगा। उनको तो जल्दी go हार्ट very अटैक fast. आता है। कितने बार देखा गया है, कितनी बार समझा गया है, योगा करते हुए किसी को हार्ट अटैक आया है, आज तक न्यूज़ में किधर नहीं आया है। भाई आपको हार्ट बीट को बढ़ाना नहीं है, आपको हार्ट बीट को बढ़ाना कंट्रोल करके सांसों की जो गति है पर मिनट की, वो 70 से लेके अगर आपने 20 पे ला दिए तो आप 120 साल की लाइफ जी जाएंगे। 30 पे ला दिए आप 120 साल की लाइफ जी जाएंगे। यदि आपने अपनी हार्ट बीट को योगा के बजाय, सॉरी, जैसे में आप रनिंग कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आपने 70 से लेके 110 ले गए, 120 ले गए, ऑटोमेटिकली विल कम डाउन। आपने अपनी लाइफ को कम कर लिया। और ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे डू जिम, यंगस्टर्स दे स्पेसिफिकली डोंट लाइक यू नो डूइंग मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। नियति सांसों की पृथ्वी पे इंसान के कर्मों के रेजिडुअल सम्मेलन से डिसाइडेड है। अब आप उसको कम बढ़ती कर सकते हैं अपने कर्मा से। अगर आपने अच्छे से कर्म कर लिए तो वो जो नियति थी वो चेंज हो जाएगी, आप अच्छी, हेल्दी, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल लाइफ कैरी ऑन करेंगे। परफेक्ट सर। सो अब बात करते हैं कि आपने ये जो स्पिरिचुअली से आपने एक बुक लिखी है, द मॉन्क विद अ मर्क। सो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको कि आपको बुक लिखना है? एंड वाज दिस बुक बिफोर द आईपीओ और आफ्टर द आईपीओ? दिस वाज आफ्टर द आईपीओ। ओके, ऑलराइट। तो उसमें बेसिकली लीडिंग अ लाइफ ऑफ ए मॉन्क, स्टिल ओनिंग द वर्ल्डली लग्जरीज, दैट इज द क्रक्स। सो अब इसको आप दूसरा रिलेट कीजिए कि आपके पास लग्जरियस लाइफ है, आप मर्सिडीज विच इज़ ए ब्रांड नेम विच इज itself is a E200 is a luxury vehicle and not many people they can afford it. Despite you have that kind of a luxury vehicles, you own that part, but still your life is sorted out as a monk. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर्सिडीज़ में बैठा हूँ या मैं मारुति में बैठा हूँ। मारुति में बैठे, यू आर स्टिल दैट सेम पीसफुल। मर्सिडीज़ है तो खुश, नहीं है तो खुश। जिस दिन ड्राइवर साहब मर्सिडीज़ चलाने के लिए नहीं है, उस दिन मेरे लिए ओला या उबर इज़ द बेस्ट चॉइस रादर देन ड्राइविंग माई सेल्फ। Okay, so not being attached to the worldliness but still enjoying it. That I think That's the simple funda. And leaving that material things at a certain age and then pursue your life goal, which is nothing but nirvana or moksha, is my game. Amazing sir. आजकल फाइनेंस के वर्ल्ड में सबसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं एंड यू आर स्टिल टॉकिंग कि पैसे से आपने कनेक्ट किया स्पिरिचुअलिटी को, एनलाइटमेंट को, निर्वाणा को। तो आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव कि पीपल गेट ग्राउंडेड विद देयर रूट्स कि एक्चुअली करना क्या है लाइफ में। सिर्फ फाइनेंस पैसे के पीछे रहोगे तो ये चीज़ रह जाएगी। देखिए, ज़िंदगी के अंदर सरस्वती, लक्ष्मी दोनों की नियति है। अगेन, सही बात। आप इन दोनों की नियति को यदि आपने बैलेंस कर लिया, और आप कहते हैं कि 9 प्लानेट हैं, आज राहु की दशा चल रही है तो इसलिए आप राहु के लिए उपाय कर लीजिए। मैं कहता हूँ जिस दिन से डे 1 से आप पैदा हुए उस दिन से आप 9 प्लानेट के सभी को मना के चलिए ना। कौन दुश्मन, किसी को दुश्मन मानने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। जब वो दुश्मन है ही नहीं तो आपने एक चीज़ वो भी होगी सुनी होगी, हिंदी में एक प्रोवर्ब है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाल का। जब आपकी रिलेशनशिप ही सुपर पावर से है तो बीच में बाकी जितने भी ये काल आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इतना डरने की जरूरत नहीं है हर चीज़ों और फिर वो भी है, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है, 2 दिन की है ज़िंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। आ रही है, वेलकम है, डरना क्यों है? सही बात नहीं। ज़्यादातर लोग लेकिन फियर में ज़्यादा रहते हैं कि यार राहु की, एस्ट्रोलॉजी में भी फियर में रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये गड़बड़। वो जाते ही एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसलिए है कि बिकॉज आज ये सही नहीं चल रहा, आज कोर्ट केस चल गए, आज वो बीपी बढ़ गया, आज प्राइस डाउन हो गया, मार्केट में इतना लॉस हो गया, आज घर में वाइफ के साथ की कलह चल रही हैं, पेरेंट्स के साथ की कलह चल रही हैं, बच्चे पेरेंट्स को देखना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट वी आर गेटिंग इनटू। 100% सर। आपने जैसे 3 इडियट्स वो मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें वो राजू था, वो ऑल द टाइम फियर में हर एक भगवान को पीछे लगा रहता था कि यार मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, इसके लिए ये भगवान को भी खुश करो, वो भगवान को भी खुश करो, हर किसी को खुश करो। बट वो इतना डरा हुआ रहता था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता था एग्जाम के टाइम पे बिकॉज ऑफ ऑल दिस फियर इनकलकेट होना गॉड का, गॉड फियरिंग होना इज द राइट थिंग। बट उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे तो गॉड से इसलिए फियर होना है कि मुझे उससे कुछ मांगना है। आप ये कह रहे हो कि भगवान मेरे कर्म हाथों से, मेरे कर्मों के अनुसार, मेरी वाणी से किसी का अहित ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे।
मेरे द्वारा किए गए कर्मों से यदि किसी का बुरा ना हो तो वो मुझे ऐसा ज़िंदगी का दिन देना, मतलब सुबह उठने के बाद मेरी प्रार्थना यही होती है, मेरे मंत्रों का उच्चारण यही होता है कि आई शुड नॉट बी परफॉर्मिंग एनीथिंग विच इज़ बैड एंड विच इज़ हैम्परिंग एनी वन एल्स, because I don't want any negative credit of the negative karmas, some balance to my positive, some balance which I accumulated over the years of the life. ईयर्स ऑफ द लाइफ। ओके, अंडरस्टूड। सो वो चीज़ में अपने को नहीं रहना, बट मतलब एकदम फियर ही नहीं रहना, बट ये चीज़ फियर करनी कि हमारे कर्मा की वजह से किसी को बुरा ना हो जाए। Yes. ओनली दैट। और हुआ अगर पीछे किया है तो यू नो वी वर्क ऑन इट, रेक्टिफाई इट एंड हाथ के हाथ उसका उपाय कीजिए। उपाय का मतलब यह है कि माफ़ी मांगिए। डोंट फील शाय इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने अपने किसी को नेगेटिव वर्ड्स बोल भी दिए हैं तो आप यू फील सॉरी अबाउट इट इमीडिएटली। अमेजिंग, अमेजिंग सर। ऑल राइट। सो लास्ट थिंग अबाउट योर बुक, कि कोई अगर आपकी बुक पढ़ता है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू टेक अवे आउट ऑफ दिस आफ्टर रीडिंग योर बुक? तो दो चीज़ें उसमें। पहला चीज़ है कि ये जितनी भी साइंसेज हैं, आई हैव सीन बोथ द साइड ऑफ द लाइफ। आई एम नॉट ए प्रैक्टिशनर प्रैक्टिसिंग से एस्ट्रोलॉजर जिसका पर्पज़ है कि अपनी लाइफ की अर्निंग्स करनी है। इट्स माई हॉबी, एंड अब तो हॉबी में भी मिलना इतने कम लोगों से रह गया बिकॉज ऑफ द बिजनेस प्रेशर कि, लेकिन अगर मुझसे किसी ने कहा है कि उसको कोई लाइफ में सफरिंग है और मुझसे मिलना चाहते हैं, मे बी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन या ओवर द फोन, आई विल डेफिनेटली। अगर किसी ने मुझसे प्यार से बोला है कि हाँ उसको कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज ओपन। मेरे को अपना हाथ हमेशा देने वाली साइड पे रखने में भगवान से ये मांगते हैं कि हाथ देने वाली साइड पे रहे, लेने वाली साइड पे कभी ना रहे। तो अगर किसी ने मांगा भी है, मुझे पता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, उसमें तंत्र विद्या का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फिर भी आई विल डू द ग्राउंडिंग माई सेल्फ एंड एवरीथिंग। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ दया भाव रखना है तो वो रखना है। अगर किसी को भी अपने बारे में समझना है, जानना है, करना है, तो ही कैन कॉन्टैक्ट यू, यू विल एज पर योर स्केड्यूल ट्राई टू हेल्प देम, यू नो। और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करे, ईमेल करे, व्हाट विल बी द बेस्ट वे? पीपल दे नो मेरा फेसबुक पेज है, इसमें आई थिंक 1 लाख फॉलोवर्स हैं उसमें। और पहले तो मैं तब भी कई बार ये अपना ग्रुप जूम कॉल्स और ये सब सेटअप करता था, बट अब इतना टाइम अलाउ नहीं करता। अब लोगों को पता है जिनको कनेक्ट करना है डिफरेंट तरीके से, दे कम थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स। और इंस्टाग्राम पे भी 2.5-3 लाख फॉलोवर्स हैं। ऑनलाइन, यस, आई हैव सीन आपके 3,75,000 फॉलोअर्स, तो दे कैन जस्ट सर्च यू ऑनलाइन एंड यू नो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू। अमेजिंग सर। तो बुक का पर्पस यही है कि आप जिंदगी के अंदर हर तरीके के डेविएशंस आएंगे। लाइक मेरी बुक के अंदर 91 पेज पे एक लव लेटर भी मैंने अटैच किया है, जो मुझे आई थिंक 46-47 की एज में मिला है, एंड दैट टू फ्रॉम ए वेल से अच्छी कंपनी में एक अच्छे फिनांस पद पे लेडी से मिला है, जिसको मैंने बच्चे के लिए हेल्प की थी, बट आई गॉट स्टार्ट गेटिंग द लव लेटर्स फ्रॉम हर। तो अब यह है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है आपको लाइफ में। आपका एम क्लियर है, लाइफ का एम शॉर्टेड आउट है कि निर्वाणा, बिजनेस सक्सेसफुल, लिविंग ए नेम, रिकॉग्निशन, फेम, एंड फेम एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, नॉट एग्जैक्टली ओनली एज ए बिजनेसमैन। ऐसा नाम छोड़ के जाओ कि जाने के बाद में भी कि हाँ था, अगर उससे किसी ने कुछ कहा तो उसने हमेशा किया, जिसने प्यार से एक बार कह दिया तो जो भी जेब में रहा दे दिया, लेकिन किसी ने अगर सिर पे चढ़ के बोला तो उसको कभी सहन नहीं किया। ओके। तो ये बुक्स के अंदर ये चीज़ है कि firm dedication and then grooming your child accordingly, the similar sort of values and principles of the family, and ensuring this is cascaded and moving forward, and telling them that despite of having all luxuries or you are a successful person, 1,000 crore empire and all that stuff, still remain grounded with your basic principle and values of the life, and always be God fearing. और मुझे बीच में जो टाइम मिलता है, rather than going to for vacations, I prefer to go to जैसे केदारनाथ जी, कैलाश जी, अमरनाथ जी। तो वो अपनी जो नेगेटिव वाले पार्ट हैं जो बिजनेस के टाइम में करते हुए कई बार होते हैं अनचाहे भी, उनको नेगेट करके क्षमा याचना के लिए आई प्रेफर टू गो देयर। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। सो बेसिकली एनीवन हु इज इन बिजनेस, उसको आप इस बुक के थ्रू बता रहे हो हाउ टू लिव लाइफ इन अ वे दैट यू विल बी एबल टू अचीव एनलाइटनमेंट, निर्वाणा, and whether you are in business, whether you are in a job, this is simple a basic principle of life. Okay, amazing sir.
So yes, and where can anyone buy this book? अगर किसी को That's लेनी है। available on Amazon. That's available on Google Play Store, also book store. That is available on Flipkart as well. That is available on the publisher say store as well. अमेजिंग। सो हम लोग उसकी लिंक नीचे डाल देंगे ताकि किसी को भी बुक चेकआउट करनी है आपकी तो वो लिंक में जाके नीचे बाय कर सकता है। Sure. ऑल राइट सर, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन टॉपिक इन द रूम, इटकॉन्स। क्या आपने सोचा था जब आपने इसको फॉर्म किया? एंड लाइक आपने जो हम लोग लास्ट बात कर रहे थे कि यू गॉट योर MBA जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा, सो व्हाट वाज द गैप बिफोर स्टार्टिंग इटकॉन? व्हाट वर यू डूइंग? जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें समय अपने आप खिलवाता है आपके। जब जैसे मैं सुबह बोलता हूँ कि सरस्वती जिह्वा पे वास करें, मेरे से कभी भी जो चीज़ें निकलें वो सत्य निकलें और झूठ ना निकले। तो उसमें शायद बचपन से ये था, बिकॉज दैट फियर वाज ऑलवेज देयर फ्रॉम द मम्मी साइड कि भगवान की पूजा करनी है, सारे जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी हमारे कर्माज होते हैं और डेली रिचुअल्स होते हैं वो पूरे करने हैं। तो कहीं ना कहीं से वो शुरू से था। एट ए एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड कीपिंग फास्ट फॉर मंडे एंड थर्सडे। तो इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने वो फॉलो किया, MBA कॉलेज में भी फॉलो किया, डेस्पाइट यू नो कि वहाँ पे मंडे और थर्सडे को आपको व्रत के हिसाब से कुछ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। एंड स्टिल आई कैरिड ऑन एंड सर्वाइव्ड आउटसाइड। आज की डेट में भी मैं वो फास्ट करता हूँ, इवन इफ़ आई एम इन दुबई और इवन इफ आई एम ऑन ए टूर। नहाने से पहले कुछ खाना नहीं है, डेली बेसिस पे पूजा करने से पहले निकलना नहीं है। ये सब चीज़ें अभी भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तो अब इसमें जो बचपन में इसका पर्पस था बताने का कि जिस समय इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय बोलता था CTO बनना है। अब वो क्यों बोलता था मुझे भी नहीं पता। जब MBA करना शुरू किया और जॉब की तो मुझे CEO बनना है। तो आपने कुछ टाइम के क्या की थी पहले? सो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए operations manager. I had been a part of Wipro and I had been supporting couple of the clients on different processes, whether it is ISO BS 7799 or COVID framework, and even defining the process or helping the technically on third level to all Wipro clients in IMS division that point of time. And that was the basically, I tell you that what happens. New technologies like Sun Solaris, HP UX, AIX admin, Lotus Domino server, MCSE, MCA, I mean server, these servers kind of things, database servers, Oracle DBA, Oracle 9G, 10G, all that stuff. I mean, अपने आप ही आते चले गए, सारे पेपर्स दिए, सब क्लियर होते चले गए। PMP किया, अपने आप किया, फर्स्ट टाइम में क्लियर होता चला गया। तो कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, सो आपके अंदर एक अहम आता है कि मैंने किया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं विद इन 5 years आई बिकेम द CTO विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विप्रो? नो, विद द सिटी फंडेड कंपनी BPO, राइट? BPO, okay. या उसमें नई टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में ज्ञान नहीं था। बट जिस समय मेरा MD के साथ इंट्रैक्शन हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको तो टेक्स्ट के बारे में नहीं पता। उनको मैंने बोला कि 5 साल में यदि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो आपने कुछ सोच समझ के बोला होगा। बोला हाँ, आपके प्रोसेस वगैरह का पार्ट का मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी की नहीं सुनी। मैंने उनसे ये पूछा टेक्नोलॉजी भी नहीं सुना? आपने विप्रो के क्लाइंट के बारे में नहीं सुना जहाँ न्यूरल टेक्टस पे ये हुआ था, यहाँ पे HDFC पे ये हुआ था, विवा लाइफ इंश्योरेंस पे ये हुआ था? तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन 2 दिन 3 दिन के अंदर सब हो गया। आइस गेट लगा था, टेक्नोलॉजी आ गया। आइस गेट लगा था इनकम टैक्स पे और कस्टम्स पे, उनके अंदर की चेकलिस्ट का प्रिपेयर करना, वो सब चीज़ें। और आपके ST पे, हिंदुस्तान टाइम्स पे जहाँ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग होता है, वहाँ पे उनके जो डिफरेंट एप्लीकेशन थे, वहाँ पे साइबर सर्वर्स वगैरह थे, उन पे 7 बंदों से पूरी साइट को मैनेज करना। जब ये सब कर सकता हूँ तो ये जो कॉल सेंटर की टेक्नोलॉजीज हैं सीखने में मुझे केवल 15 दिन लगेंगे, इसके बाद आप पूछिएगा। एंड ही सेड डन, asked HR he has to be taken in, and then it happened. And within 5 years of experience I became the CTO. CTO is not just the CIO. थोड़ा सा पूछना है, which salary did you start working at? क्या सैलरी पे आपने काम स्टार्ट किया था? Wipro was my salary package was when I left Wipro because of the salary package only. My last salary package in Wipro was 3.6 lakhs. लास्ट सैलरी पैकेज, मतलब इतना सब करने के बाद भी। So I was the one who जो विप्रो का थापर हाउस था उसमें I was the first person to enter into 7 o'clock, 7:30 maximum in the morning, and I used to be the last person to leave the office around 11:30 kind of thing.
तो उस समय 30,000 per month. यस And एंड जो कौन सी लोग ईयर की बात है ये? ये दैट इज 2002 टू 2000 नहीं 2001 टू 2004 2001 to 2004. Okay. सो amazing. उस समय मेरा आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज माई टेक्निकल बैकग्राउंड वॉज वेरी गुड. तो उस समय ये है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी Oracle हो या जितने भी हो दीज पीपल वर रिपोर्टिंग टू मी डिफरेंट साइड्स पे. हाँ हाँ. आई यूज टू बी कंसिडर एज ए लेवल 3 पर्सन टेक्निकल पे. एंड वो जो लेवल 2 और लेवल 3 के पर्सन आ रहे थे दे वर कमिंग एट 7 lakhs 8 lakhs पैकेज पे एंड दे वर रिपोर्टिंग टू मी. ये कैसे, मतलब ये आपको क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरर था कि क्या था आपके हिसाब से? ये पैरिटी एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम उसमें जब बात करते हैं PCMM की बात करते हैं और पैरिटी की बात करते हैं, बेंडिंग की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप एक्सटर्नल बाहर से लेटरल हाइडिंग आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाते हैं कि यू कैन नेगोशिएट. बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज ए पैरिटी गैप्स व्हेन दे आर यू कैन नॉट ब्रीच द पैरिटी सो इजीली. तो वहाँ पे भी मतलब मेरे जो 5 लेवल ऊपर बॉसेस थे उन्होंने भी HR के साथ में ये सब करने के लिए ट्राई किया. एंड 3 महीने का नोटिस देने के बाद लास्ट डे रात को 8:30 बजे भी मैं मेन फ्रेम के इंटरव्यूज़ लेके निकला हूँ. जिस समय मेरा लास्ट डे साइन हो चुका था 5 बजे, एवरीवन वाज लीविंग, स्टिल आई वाज टेकिंग द लास्ट. अगर मैंने वहाँ विप्रो नहीं छोड़ा था तो आई वुड हैव बीन ऑन ए डिफरेंट लेवल. बट वो डेस्टिनी थी कि आई हैड टू गेट इनटू द बिजनेस, आई हैड टू बिकम द एंटरप्रेन्योर. Correct. Amazing. So then you left Wipro, then आपने BPO में जॉब नहीं. So उसके बाद आई वेंट टू CSE एज ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर. Okay. सो CSE स्टार्टेड इंडिया ऑपरेशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उस समय उन्होंने मेरे को ट्रिपल द सैलरी दे दिया. हाँ. और वो सैलरी विप्रो से 3 टाइम्स आपको सैलरी ऑफर किया? 3 टाइम्स बिकॉज देवर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था. इंडिया के अंदर दैट वाज ए कॉस्ट सेंटर. ओके. तो उस समय वो 2 साल जो है मेरे लिए हालांकि पैसे वाइज तो ठीक थे बट काम वाइज नहीं थे. एंड आई वाज ए वर्क एल्कोहलिक गाय. तो उन्होंने पैसे तो दे दिए बट करने के लिए पूरे दिन कुछ होता ही नहीं था. पूरे दिन TT खेल रहे हैं, पूरे दिन बाहर घूम रहे हैं. एंड मुझे लग रहा था कि दिस वाज ए रॉन्ग डिसीजन विच आई हैव टेकन. एंड इसलिए मैंने फिर वहाँ से उसको मैंने छोड़ा भी नहीं किया गया. अपने आप ही पुराने वाले जो लोग थे विप्रो के टाइम में, जो वेंडर्स थे जिनको मैंने विप्रो में इंट्रोड्यूस किया था, उनमें से किसी एक वेंडर ने ये HR टीम में ज्वाइन किया हुआ था. उनके यहाँ पे CTO की रिक्वायरमेंट आई. उन्होंने बोला सर आप इसके लिए बिल्कुल फिटमेंट हैं. मैंने उसको बोला भी मेरे को जो है कॉल सेंटर का नहीं पता. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार आइए सर MD से मिल लीजिए, आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू. और वो पहली बार आया, पहली बार ही मिला. Day 1 पे 1 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया. एंड अगेन इट रीजन यहाँ से छोड़ने का ये था कि काम ज़्यादा नहीं था, काम नहीं था, सैलरी दे रहे थे, काम नहीं था. बाप रे सर, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको काम से प्रॉब्लम होती है और उनको सैलरी ज़्यादा चाहिए रहती है कि काम ज़्यादा क्यों दे रहे हो. अगेन ज़िंदगी में नहीं आती है इसकी भी. जितना ज़्यादा सफरिंग पहले ले लोगे उतना ही ज़्यादा लाइफ आगे की शॉर्टेड आउट होगी. अदरवाइज बुढ़ापे में अगर आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े और शुरू की लाइफ आपने अच्छे से जी ली तो वो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. बिकॉज उस समय आपके पास ना तो एनर्जी है, ना विगर है, ना आपके पास पैसा है, ना पावर है, और ना ही आपके पास एनर्जी है. सही बात है. सो देन यू जॉइंड दिस न्यू कंपनी. तो उधर से कुछ हाइक मिला था कि नहीं मिला था? उधर से my salary was I'll not quote the salary but it was again 2.5 times. Again 2.5 times का आपको हाइक मिला from this to this new place. Yep. Okay, amazing. Okay, so now you are at a very good package. और ये कौन सा ईयर था? 2005 to 2007. 2005-7 में इतना अच्छा सैलरी पैकेज, so which is very good. You are like doing financially well at this time. Yep. Right. Okay. Next, then what happened? उस समय प्रॉपर्टी भी बनाई, उस समय घर भी खरीद लिया, उस समय शादी भी कर ली थी, उस समय बेटा भी हो गया था. तो लाइफ वाज सॉर्टेड आउट. सबसे बड़ी गाड़ी उस समय अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे पास थी. Okay. अब आता है टाइम धक्के खाने वाला. Okay. आपने ये आपके अंदर एक अहम आया कि जब आपने वो BPO ज्वाइन कर लिया तो आपने वहाँ पे बिल्कुल चेंजेस ला दिए. जो कंपनी लॉसेज में चल रही थी आपने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया. Okay. अब वो प्रॉफिटेबल बनाने के बाद आपके अंदर एक अहम आ जाता है कि बस मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो अपने लिए करूँगा. हाँ. अभी समय अच्छा था. समय के हिसाब से मेरे को US से आउटसोर्स के कुछ प्रोजेक्ट मिल गए जिसमें $32 पर घंटे के हिसाब से मेरे को 40 बंदों की बिलिंग मिल गई. ओके. तो अब आप सोच सकते हो कि 40 बंदों के $32 के हिसाब से 160 घंटे पर वीक के अगर आपको बिलिंग मिल जाए
तो यू बिकेम द किंग। करेक्ट। तो But- उस कंपनी में प्रोजेक्ट मिला था कि प्राइवेट प्रोजेक्ट मिला था? मेरे को सेपरेटली लिया था मैंने, सेपरेट प्राइवेट प्रोजेक्ट मिला था। ओके। एंड देयर वी स्टार्टेड आईटी कोर्स, देयर यू स्टार्टेड आईटी कॉन्स, वहाँ से सर्विसेज जैसे ये बिजनेस यूएस में। की कंपनी का ऑर्डर आया आपको। बट Perfect. ये नहीं पता था कि ये जो है ज़िंदगी के इश्यूज आने से पहले का आगाज है। आपको अच्छा सा फल तो दे दिया, बट अब यहाँ से आपको देखना है। आगे ले तब तक आई यूज्ड टू बी लीन हैंडसम गाय विद लॉट ऑफ हेयर ऑन माय हेड, ब्लैक ऑल एवरीथिंग। ओके, तब तक लाइफ बहुत आराम से चल रही थी। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी इगोइस्टिक आल्सो, यंग एंग्री मैन। अगर किसी को बोल दिया कि ये काम अभी होना है तो ये होना है, कल की शक्ल, अगर अदरवाइज कल ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। तब तक आपको एकदम अच्छे से रहे हो, तब तक बिजनेस के टेंशन नहीं थे सर। और इवन अगर मतलब एमडी अगर फ्लो से निकल जाते थे तो उस समय फ्लोर पे जो लोग बात कर रहे हैं बात करते रहते थे, बट यदि मैं फ्लो से निकल गया तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। ओके, देखा जाए ऑफिस के बॉस था आप ही थे वो भी। तो दैट वाज देयर, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि अगर एचआर भी हो तो एचआर ने अगर बिना नोक किए मेरे अगर केबिन में घुसे तो होता था पहले बाहर नोक कर, गेट आउट एंड नोक द डोर फर्स्ट एंड टेक द परमिशन। ओके, बट उसके बाद हमारी शुरू हुई गृह केतु महाराज की। हाँ। और केतु की महाराज की जो गृह है उसने ये सब चीज़ें लाइफ की अध्यात्म से लेके सब सिखवा दिया बाद में। जब आप काम कर रहे हो और आपके पास जब ये प्रॉब्लम आई वहाँ पे यूएस में जिस क्लाइंट की थी, वो दे वेंट इनटू लिटिगेशन एंड देन वी डिड नॉट हैव एनी क्लाइंट एंड देन वी स्टार्टेड ब्लीडिंग बिकॉज वी हैड नो अदर चॉइस बट टू कीप पेइंग द सैलरीज। उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा शॉर्ट आउट, बट नहीं हो पाया, तो वो सब माइनस जाते चले गए। आई हैड टू तो सर ये कौन से ईयर में आपको यूएस का ऑर्डर आया था? 2007 में जब बिजनेस शुरू किया था तब उस ऑर्डर के साथ शुरू किया था। ओके, उसी ऑर्डर के साथ आपने स्टार्ट किया था। एंड दिस लिटिगेशन स्टार्टेड इन विच ईयर? 2008 में। जब भी मार्केट का बड़ा क्रैश भी आया था, बस वहीं से जिंदगी। लीमैन ब्रदर्स के। हाँ, तो बस वो तो मार्केट का क्रैश था। उस समय तक हमें मार्केट हाँ। का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यूएस में जो Right, क्लाइंट था वो लिटिगेशन में चला गया। ओके, बट रिसेशन भी स्टार्ट हुआ था ना, बोलते हैं 2008 से रिसेशन स्टार्ट हुआ था। वो तो उसका इम्पैक्ट था, इंडिया के अंदर भी था, हाँ। यूएई के अंदर भी था, यूएस के अंदर भी था, बट उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था बिकॉज वी वर नॉट इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट्स। तो जो हम कर रहे थे तो उसमें बट ओवरऑल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आने से आपको बिजनेस पे तो फ़र्क पड़ता ही है। फर्क पड़ता ही है। तो फिर वहाँ से दोबारा से सबको हटा के दोबारा से लाइफ शॉर्ट आउट की, 6 लोगों की टीम के साथ बढ़ना शुरू किया, प्रोडक्ट डेवलप करने शुरू किए, रिक्रूट प्लस टैलेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन सूट बनाया। बट 2013 तक उससे इतना रेवेन्यू तक नहीं निकल के पा रहा था कि हम सैलरी देने के लिए भी अपनी जेब से पैसे हर महीने डाल रहे थे। वाइफ वॉज वर्किंग, उसकी सैलरी आती थी, वो सैलरी प्लस जो प्रॉपर्टी से पैसे बेच के ऑफिस चला रहे थे। ओके, मतलब आप लिटरली सारा बिजनेस कैसे कैसे खुद के हिसाब से रन कर रहे थे। This was a most horrible time. That point of time you feel low also, but still you know कि despite of you doing lot of effort, still you have nothing in your hand which you cannot do anything about it. या अब- करेक्ट, मतलब वो अब यहीं से ये चीज़ आई, दुनिया भर के पंडितों के पास घूम लिए, दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर के पास घूम लिए। किसी ने बोला कि काल सब दोष की पूजा करा लो, किसी ने बोला ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, एंड लास्ट में एक दिन फ्रस्ट्रेट होके यही हुआ कि यार कुछ तो है, ये जो चीज़ें हैं खुद ही पढ़ता हूँ। और वहाँ से आया न्यूमरोलॉजी। ओके, अमेजिंग। I did not get any guru, I did not take any formal education from anyone, but here this बोध ज्ञान started। बस वहीं से थोड़ा सा पढ़ा कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, वर्क कैसे करता है, लॉट ऑफ थिंग्स कि ये करने से हो जाता है। तो मैंने अपने नाम के अंदर एक वी ऐड किया ओके, फर्स्ट नेम में, so yeah, I can अनऑफिशियल see रिकॉर्ड it's पे गौरव मित्तल, या डबल वी। GRAV मित्तल, या सो आज तो मैं उसका पर्पस समझता हूँ, बट जब किया था तो इतना नहीं समझता था, बट आज तो अलग चीज़ है बिकॉज दैट एक्सपीरियंस और दैट लाइफ का जो जितना ये इस समय का वास्ट एक्सपीरियंस है ऑकल्ट साइंसेस का इज़ डिफरेंट। वहाँ पे उस समय करके देखा तो कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट होनी शुरू हुई। ये प्रोडक्ट वाले बिजनेस को बंद किया, वापस से स्टाफिंग बिजनेस में घुसे जहाँ से शुरू किया था। ओके, जैसे स्टाफिंग के बिजनेस में वापस आए, वापस से शुरू हुआ, प्रोडक्ट हाँ। बिजनेस। ओके, यहाँ से ये चीज़ें शॉर्ट आउट होनी शुरू हुई। फिर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ के न्यूमरोलॉजी के बेस पे प्रेडिक्शन देने शुरू किए, अपना फेसबुक का पेज बनाया, उस पर ऐसे लिखना शुरू किया, लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया, जुड़ना शुरू हो गए, जो बोलना शुरू किया वो होना शुरू हो गया। वाओ। फिर एक दिन हमारी सो व्हिच वाज दिस ईयर आपने वापस प्रोडक्ट छोड़ के स्टाफिंग में आए? 2013
2013 में, ओके। और उस समय एक दिन हमारी धर्मपत्नी जी अपने मायके गई हुई थी 4-5 दिन के लिए। हमने कहा अब एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली जाए। बस एक दिन ऐप खोला अपना, उससे पढ़ना शुरू किया, ये क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने भाव होते हैं, ये होते हैं। बस उस दिन से इंटरेस्ट इनकलकेट हुआ। उस दिन से सारे समझ में आ गया कि महादशा क्या होती है, अंतर्दशा क्या होती है, कितने भाव होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं, किसको किस भाव में किससे कनेक्ट होने से क्या दोष बनते हैं, क्या योग बनते हैं। उसके बाद से बस फिर तो इट वाज, वो जितना पहले दिन में अगर आपके पास 1% भी नहीं पता था, तो फिर धीरे 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 करते दुनिया भर की जन्म पत्रियाँ, हॉरोस्कोप देखते हुए फिर वो डॉट्स कनेक्ट होते चले गए। देन द लेवल स्टार्टेड गेटिंग डिफरेंट। देन यू स्टार्ट, आई गॉट दिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आई गॉट द ऑनररी डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, एंड दोज थिंग्स दे स्टार्ट हैपनिंग। So it was in destiny कि it was supposed to happen that way. It was a hard learning myself, so it happened. I'll not say कि I did a conscious effort to do that. It was all luck by chance. Or any organization which is a good organization is built by luck by chance. Be it Swiggy, which is recently the IPO. If you read the story, you will understand. If you read the story of Naukri, Sanjeev Bikhchandani, is the similar sort of a story. मतलब लक और ऐसे डेस्टिनी का काफ़ी फैक्टर होता है चीज़ों में। डेस्टिनी ये चीज़ें कहाँ से शुरुआत होनी है किसी को थोड़ी ना पता होता है। आज की डेट में हम कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा। गुड टू डू दैट पार्ट, बट फिर वो भी एक चीज़ है, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों परसों की। बिकॉज समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, something which is the external factor, you keep doing something which is good your karmas, so at any point of time, even if it is a unnatural death which touches your feet, आपके पास हमेशा अपने पॉजिटिव कर्मों का संबैलेंस है कि यू डोंट वांट टू कम बैक, सिंपल कम बैक। सही बात है, सही बात है। आप ये सोचेंगे कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तभी जाके वो संन्यास लूंगा, वहाँ जाके अपने नेगेटिव कर्मों का नेगेट करूंगा, तो आपको ये नहीं पता कि ड्यूरिंग दैट 45, 60 और 70 ईयर्स हाउ मेनी नेगेटिव कर्मास यू हैव डन, और वो जो थ्रेश होल्ड है वो पहले ही पूरा हो चुका है। पता लगा यमदूत आ रहे हैं या देवदूत आ रहे हैं, वो कहते हैं जी भाई सब टाइम पूरा हो चुका है, अभी चलो। फिर आपके पास वो अपने नेगेटिव कर्मों को नेगेट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। अब उसके बाद धीरे 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 चीज़ें ठीक होनी शुरू होती चली गई। फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइनमेंट बढ़ता चला गया। जब आप इन चीज़ों में आते हैं और आपको लगता है कि हाँ, तो जो केतु के टाइम में मेरी सफरिंग थी विच वॉज सपोज टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल 2017, इट वेंट अवे बाई 2014 इटसेल्फ एंड द लाइफ स्टार्टेड गेटिंग सॉर्टेड आउट। ओके 14 में ही आपका बिजनेस इंप्रूव होना चालू हो गया, लाइक स्टाफिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो गए थे। विप्रो, एससीएल के सारे जगह पे टेक्नोलॉजी, कॉमनेट, एससीएल सर्विसेज, एससीएल इन्फोसिस्टम एंड दुनिया भर के बाकी क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। अमेजिंग। तो मतलब आपने फर्स्ट बड़ा क्लाइंट कौन सा साइन किया था तभी? सबसे पहला तो एससीएल एंड विप्रो, एससीएल एंड विप्रो। और क्या साइज का कॉन्ट्रैक्ट था वो? कॉन्टैक्ट ऐसे नहीं थे उसके अंदर। आपको एमएसए साइन करना होता है, उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं, उनके अंदर मैन पावर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। सो इट वाज लाइक अ गुड थिंग व्हिच स्टार्टेड यू ऑफ इन 2014 2015। यस, अमेजिंग। सो उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही वहाँ से कोविड, प्री कोविड तक की बात करते हैं ना? कोविड तक पे भी हमें कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट ये था कि हाँ, एज ए बिजनेस वी वर डूइंग गुड, सैलरीज आ रही अपनी। हम मतलब आई हार्डली यूज टू टेक सैलरीज। मेरा पर्पज़ होता था कि कंपनी में पहले राइज करना है, कंपनी को एक लेवल पे लेके जाना है। घर में वाइफ की सैलरी आ रही है, शी वॉज डूइंग जॉब, सो मेरा घर चल रहा है, तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बेटे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे हैं, तो इट वॉज ऑल फाइन। आई डिड नॉट इवन टेक द सैलरीज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। वाओ। इट वॉज ए टाइम व्हेन वी वर गोइंग प्लानिंग फॉर पब्लिक 2022 में। I started taking my salary from there. So, जब तक पब्लिक नहीं गए तब से अपने सैलरी लेना, जब से चालू किया प्लानिंग पब्लिक का, तब से सैलरी लेना चालू? मतलब 6 महीने पहले आईपीओ से, तब से मैंने सैलरी लेनी शुरू करी। उससे पहले मैं सैलरी नहीं लेता था। बाप रे। बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर फ्री फॉर द कंपनी। It was not free. I'll not say. Today I own the maximum share. एंड इफ़ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज इंक्रीजिंग, और जैसे आपने कहा कि 1.5 करोड़ शेयर हैं होने वाले आफ्टर दिस कन्वर्जन ऑफ व्हाट यू से, जो प्रेफरेंशियल है 1.5 करोड़ शेयर हो जाएंगे। यदि उस समय शेयर का प्राइस आज अगर सपोज 600 रुपये है, और यदि हम प्रमोटर 70% ओन करता है, तो माई नेटवर्थ इज 100%। यस, नहीं लेकिन तब भी आपको नहीं मालूम था ना कि आप IPO आएगा या कुछ आएगा, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द कंपनी। नहीं, वो तो पता था ना, डेस्टिनी तो है वो। अभी आगे भी पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अब इतना तो अलाइनमेंट भगवान के साथ हो गया है।
हाँ सो आपको मैं एक स्टोरी आपको एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ की, एक रिसेंट। अभी रिसेंटली मैं कैलाश जी गया। हाँ उससे पहले जब हमारा IPO अभी मई 2024 में मैं अपनी टीम को लेके यहाँ पे गया था ऋषिकेश से ऊपर, आपके जो हैं भगवान शंकर का मंदिर, व्हाट इज नीलकंठ जी गया था। नीलकंठ जी पे जाने के बाद में हम लोग ने बस बोला कि भगवान जब 500 रुपये का IPO आ जाएगा ना तो मैं कैलाश जी आऊँगा। अब यहाँ पे एक वर्ड्स नोट कीजिए, जब 500 रुपये का हो जाएगा ना मेरा शेयर का प्राइस, तो मैं तब मैं IPO नहीं, सॉरी, जब शेयर प्राइस 500 रुपये का हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन के लिए कैलाश आऊँगा। बट तभी आपको IPO आया था कि नहीं आया था? IPO तो पिछले साल आ चुका था। पिछले साल आ गया था, ओके। मैंने बोला था कि जब 500 रुपये का प्राइस हो जाएगा शेयर का ना तो मैं आपके कैलाश जी दर्शन करने आऊँगा। ओके। अब कैलाश जी जाना था मुझे 23 सितंबर को, बट उसमें कुछ सीट का प्रॉब्लम हुई कि मुझे विंडो सीट नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसको चेंज ओवर कर दिया कि चलो मैं 25 अक्टूबर को चला जाऊँगा। ओके। अब वहाँ पे क्या हुआ, उस समय मेरा शेयर बाजार के प्राइस में शायद शेयर का प्राइस 750-700 के बीच में चल रहा था। उसी दिन के बाद से पूरा अब मानने या ना मानने की बात है उस दिन से मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, सारे शेयर प्राइस नीचे आने शुरू हुए। मुझे 25 अक्टूबर को जाना था। 25 अक्टूबर पे मेरे जिस समय मैं मंदिर जा रहा था, वहाँ पहुँचा था, नेपालगंज से मंदिर पे पहुँचा था, तो उस समय प्राइस जो है 15 मिनट का डिफरेंस है दोनों के टाइम जोन के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। मुझे लगा कि इंडिया की टाइमिंग पे ही है, तो जिस समय वहाँ पे मैं एंटर कर रहा था तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो है, तो मुझे ये लगा जो मार्केट हो गया, बंद हो गया है, और उस समय 484 दिखाई दे रहा था। मैंने ऐप पे चेक किया, ऐप पे देखा तो मार्केट तो अभी चल रहा है। मैंने इंडिया में कॉल किया कि टाइम क्या हो रहा है, उन्होंने बोला अच्छा, फिर मुझे लगा 15 मिनट का डिफरेंस है। अब मज़े की बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुआ हूँ वहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट क्लोज होने के टाइम पे एग्जैक्टली 500 का प्राइस था उस दिन। तो मैं भी मजाक में ये बोलता हूँ कि भगवान ने ये कहा कि बेटा जब तक तुम्हारे पास जो है प्राइस आपका बढ़ रहा था तो आप आए नहीं। जिस दिन आपका प्राइस में आपने बोला था कि 500 पे आओगे, तो मैं आपको 500 पे लेके आया हूँ यहाँ पे। 500 पे लेके आए वहाँ पे। So that's something which is, I mean, अब वही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन इतना भी कैसे कि 499 नहीं, 501 नहीं, 487, इट वॉज वाई 500। तो ये चीज़ें अब ऐसी वाली हैं जिसके अंदर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। अब वो हुआ क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता। वो अलाइनमेंट है तो है, बट हुआ है। अब सामने तो सच को प्रमाण है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज। तो वही है कि अगर आपने कोई चीज़ बोली है, आपने कहा है, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। वहाँ जहाँ रोकेंगे, इसका मतलब है कि आपने एक बार देख लिया कि कैसे बैकफायर होता है। और मुझे नहीं पता कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल भगवान ने पूरे मार्केट को इसी वजह से डाउन किया, बट यू बिकेम द पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। यू बिकेम द पार्ट ऑफ इट। सही बात है, सही बात है। और उसके बाद मार्केट ने फिर 15 दिन, अभी मुझे आए हुए 15-20 दिन हुए, मार्केट अपने आप ऊपर है, प्राइस आज पे 600 है अपने आप ही, अपने बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं पे ये अलाइनमेंट आपका थॉट प्रोसेस और बढ़ता चला जाता है कि देयर इज द सुप्रीम पावर विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यू आर जस्ट ए पपेट। आपके हाथ में केवल कर्माज हैं, नथिंग इज इन योर हैंड इन टर्म्स ऑफ कि कोई कह दे कि भैया मैं MBA हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ सक्सेसफुल। मेहनत हर कोई कर रहा है, बेचारा जो पत्थर तोड़ रहा है, आपके लिए महल बना रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, बट अपने लिए वो कभी घर नहीं बना पाया। बट आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में था उसके सुख को भोगने का, तो आप भोग रहे हो, because that is the residual sum balance of your positive karmas which you did in your previous birth and also your whatever the positive karmas you are doing at this point of time। उसके नेगेटिव कर्मा का अर्जन था जो बेचारा नॉन वेल्दी होके, गरीब होके गुजार रहा है। So that is what this theory is all about, and I am a firm believer. I don't shy in terms of coming on the podium talking about it and saying कि it's not me who did it. It's something which is a supreme power which made me as a messenger to do this. That's it. Okay.
So, final ki what are your views on future of SMEs IPOs and raising funds through public avenues? Earlier, SME IPO bringing on was easier. Now there are a lot of rules and regulations which were applicable on main board IPO. They are also coming on SME IPO also now. Like ESM. Earlier was not there. After 100 crore market cap, it was only ESM 1, ESM 2. Now SME IPO also. If the market cap is less than 1000 crore, there is a ESM, ESM 1, ESM 2, and then POD call. That is again a big setback for SME. Second one is even SEBI is putting a lot of restrictions like on terms of the cash flows, in terms of the net worth. Before the person they can apply for the DRHP approval or RHP approval. Exchange is also putting a lot of restrictions in terms of which IPO to give say approval or not give approval. Okay. And some time back there was a news like out of some 160 IPO filing were being retrenched back by the merchant bankers itself. Okay, so they're like given back. They won't do it like that. The people have thought SME IPO a way to make money. But now since जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें लोग जो है उसका रास्ता निकाल लेते हैं, तोड़ निकाल लेते हैं. बट जब ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी तो वो जो ग्रोथ वहाँ पे दिखाई दे रही थी कि एक साल में कंपनीज 1000% का रिटर्न दे रही हैं, 2000% का रिटर्न दे रही हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी कार्ब ऑफ हो जाएंगी. So आपको लग रहा है दिस रिस्ट्रिक्शंस आर गुड जो गवर्नमेंट ला रही है, और इज इट समवेयर डिफिकल्ट फॉर एसएमई टू गेट फंड्स राइट नाउ? देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं. जो अगर हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स बहुत बड़ी चीज़ है. यदि पब्लिक का सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाएगा तो इट विल बी ए सेल. तो जो आपके इंडेक्स हैं, सेंसेक्स हैं या आपके निफ्टी 50 हैं, अगर BSE पे बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 वगैरह हैं, ये इन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. ये नीचे आएंगे, पब्लिक के अंदर बेकाबली आ जाएगी. ऊपर से फिर FIIs का सेल करना जो मार्केट के अंदर एक साथ लार्ज वे में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें एकदम नए से पब्लिक के ऊपर लोड लेके आता है. ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शंस है भी कि एक साथ आने हो जाए, तो उस केस में ये सोने पर सुहागा नेगेटिव कोनोटेशन साइड पे ये होना शुरू हो जाता है. और जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है कि वी हैव टू मेक ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट यदि नहीं बढ़ेगा तो इम्पॉसिबल, लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकती. दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द मीन्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. इट कैन नॉट बी विदाउट अगर उस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस को इस तरीके से, पॉलिसीज़ को इस तरीके से रखा जाए कि FIIs इंडिया की बजाय अगर चाइना जा रही हैं तो वो एक प्रॉब्लम है. यदि FIIs चाइना से निकल के इंडिया आ रही हैं तो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर अस. बट यहाँ पे अभी इस कुछ टाइम में, पिछले 2-3 महीने में जो FIIs ने 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का जो मार्केट में सेलिंग की है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो गए, लोगों के दिवाली पे दिवाला निकल गया जैसे बोलते हैं. वो थोड़ा सा आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस वगैरह 8 अक्टूबर को अचानक से SEBI का SME बोर्ड के लिए भी वो रेस्ट्रिक्शन लेके आना कि ये सब लगेगा. ये सब चीज़ें ना मिला के एक ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा हो गया. जबकि आपने बताया कि एज अ फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर 7-8 महीने का आपको भी प्रोसीजर करना पड़ा, खुद से मेहनत करनी पड़ी SME IPO लाने के लिए. So for that period, you are focused less on business, working more on IPO. तो it is a tough job, right? कि अभी भी तभी. और एक और भी चीज़ है, जिस समय आप कंपनी को पूरी प्रोफेशनल IPO आने के बाद कंपनी को पूरा प्रोफेशनल बनाओगे तो आपके ओवरहेड्स बढ़ेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी 100%. आपका आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी, पैट एब्सोल्यूट नंबर में कम हो जाएगा. मार्केट क्या रेट करेगा कि प्रॉफिट डाउन हो गया है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है IPO में, एंड दे विल बी सेलिंग मोर रादर देन द बाइंग. और उस समय सेलिंग के टाइम पे जब सेलिंग ज़्यादा आ जाएगी तो उस समय आपके शेयर लेने, स्टॉक लेने वाला कोई नहीं होगा. एंड देन आपका एफर्ट जाता है कि आपको अपनी पब्लिक की इमेज भी बना के चलनी है ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले, एंड पीपल शुड बी इंटरेस्टेड टू बाय योर शेयर्स आल्सो. दे शुड नो योर फ्यूचर विजन्स एज वेल. सो इट्स अ दुधारी तलवार. मतलब लाइफ ऑफ ए एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज दुधारी तलवार पे बैठे हुए आप. सही है. ओके, फाइनल क्वेश्चन. अगर किसी को SME IPO लाना है तो उसके पास कैश में कितना पैसा होना चाहिए, एंड हाउ मच % ही कैन अदर एक्सपेंसेस ही कैन डू इन टर्म्स ऑफ शेयर्स?
ये अब जनरली एसएमई आईपीओ के अंदर पेडअप कैपिटल 25 करोड़ से नीचे का होना चाहिए। जनरली 10 करोड़ या 12 करोड़ के पेडअप कैपिटल भी है तो लोग इस पर एसएमई, उसके अंदर भी आपके पास सरप्लस एंड रिजर्व्स होते हैं, उससे आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास आपने खुद को बढ़ाना है, आपने पहले से आपका स्टेक कम था तो आपके पास 2-3 करोड़ रुपए डालने पड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि जनरली होगा नहीं ऐसा वाला पार्ट पे, तो उस केस में जो लाने की जो कॉस्ट है एसएमई आईपीओ वो तो 20 लाख से लेकर 30-35 लाख के बीच में होती है उसमें। फिर लेकिन आरओसी का एक्सपेंस है आपको कैपिटल बढ़ाने के लिए, उसमें 10 लाख रुपए की फीस आ सकती है, उसमें बीच में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आ सकते हैं, कन्वर्जन की कॉस्ट आ सकती है कंपनी को, तो जो आरओसी की फीस वगैरह हैं ये मिला के अनदर 10 लाख, तो मतलब 35 लाख के बीच में आपकी कॉस्ट में आपका आईपीओ जाता है। बट उसमें सारी कॉस्ट आपको अभी भी नहीं देनी है, कुछ सक्सेसफुल पे होने के बाद कंप्लीशन पे देनी है। आपके मर्चेंट बैंकर और आपके अंडर राइटर की फीस जो है उसमें से 50% पहले आ सकती है, अंडर राइटर की तो फीस बाद में जाएगी जब आपका सक्सेसफुल आईपीओ आ जाएगा। IRPR की फीस आपको थोड़ी पहले देनी पड़ती है, थोड़ी बाद में देनी पड़ सकती है। तो आपके पास अगर 20 लाख की फंडिंग है तो 20-1 लाख के आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, यू कैन ब्रिंग अपार्ट फ्रॉम द जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बैलेंस शीट उस पर शेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए। ये बस मैं फीस पर्सपेक्टिव से, आरओसी की फीस पर्सपेक्टिव से, लीगल फीस पर्सपेक्टिव से उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट सर, परफेक्ट। इटकॉन्स के बारे में आप कुछ भी लास्ट बोलना चाहोगे, और एनीवन हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स? Now we as an investor we look forward into the company के business model पे one part, कंपनी के साथ साथ ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ प्रमोटर के ऊपर, कितना पैशनेट है, आज नहीं तो कल अगर उसने धंधे को बढ़ा के कर लिया तो बिजनेस तो बढ़ जाना है, शेयर प्राइस तो अपने आप जूम हो जाना है। लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर एक बार प्राइस डाउन भी आ गया, क्योंकि जो प्रमोटर अच्छा है, जिसका कंपनी के अंदर अपना स्टेक है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी लेट डाउन हो। उसकी कंपनी लेट डाउन का मतलब कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से उसके हाथ में नहीं होंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वो सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट होगी ही होगी। और वो लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है पुड़िया कि एक बार दवाई खा ली तो ये चीज़ें ओवरनाइट हो जाए। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड क्लाइंट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड रेवेन्यू, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड पैट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड good team, and it takes time to build the confidence of the customer also. Same time we also want कि जो हमारे investors हैं they should also have a faith into us कि yes we had been there in the market, we are doing good, we will do better and will become one of the best companies of staffing, or we will become one of the best investor friendly company giving best of the return to the people who have invested into us. अमेजिंग सर, अमेजिंग। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू सर। बहुत कुछ सीखने मिला है आज आपसे, फ्रॉम लाइफ टू बिजनेस टू एसएमई आईपीओ, बहुत कुछ। मैं सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को ये बोलूँगा, व्यूअर्स को भी, कि प्लीज़ सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, स्टे कनेक्टेड। एंड जैसे सर ने बताया, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू हिम। हाँ, ऐसे आईपीओ से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बात करनी है, कभी आपको लगे कि हम लाना चाहते हैं, आपको राइट सलाह नहीं मिल रही है, सो यू कैन एनी टाइम आस्क योर व्यूअर्स टू गेट इन टच विद अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन। अमेजिंग सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ऑल द एनर्जी। थैंक यू सागर, एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम आल्सो। यस, ओके, थैंक यू सागर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू एज वेल। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।